Now, dear students, today we will go through the major book of Geoffrey Chaucer, named after Canterbury Tales. It is not about that I am talking the whole story, including in that great book of the Canterbury Tales, which had been written in the last of the 14th century. In this book, the Canterbury Tales, Chaucer had written so many stories that reflect the characters of different strata in the then society of England. The book has the stories of Knight's Tale, Reeve's Tale, Miller's Tale, The Wife of Bath, The Pardoner's Tale, The Nun's Priest's Tale, and many more others. Now, which we will study now, this is The Pardoner's Tale. What is pardoner? Who is pardoner? I will discuss it later on, a bit later on. But before we start the book, The Pardoner's Tale, I would like to mention what is Canterbury, why Chaucer had kept the name of his great famous book, The Canterbury Tales, after Canterbury. Tale, you all know very well that its story, tell, has the another meaning that we know as story. Canterbury is a place in England that is a holy place, very famous one, and where the famous shrine is there that the people with religious faith, that pilgrims, used to visit that place. So, the name of that book has been kept after Canterbury because it was the journey to the Canterbury. And everyone in that group had to narrate a story while going to the Canterbury. In this Canterbury Tales, Chaucer had selected so many characters, and each character reflects his own society. The book, what we say, is the mirror of the society. This is what we can find in the Canterbury Tales, that Canterbury was also the mirror of the then society. Every person, even taking Knight, Miller, Reeve, Pardoner, Wife of Bath, and Nun, so they are all reflecting their own groups. What Chaucer mean to say in this book, that corruption was prevailing
in every group, in every society, in every cult of that time of London, of that time of England. Even in that time, corruption was there. Since the partners tell, we have to discuss. We are taking the case of the partner. पार्टनर का एक्चुअली मीनिंग होता है क्षमा देने वाला. क्रिश्चियन सोसाइटी में पोप, चर्च, पार्टनर, फादर, क्लर्जीमैन, ये सब वर्ड है जो ऑल रिलेटेड टू द चर्च. यहाँ होता क्या है, पार्टनर का काम है उपदेश भी देना, प्लस क्षमा करना लोगों के अपराध को. जिन लोगों ने अपराध किया है वो कबूल कर रहे हैं, उनको क्षमा दिया जाता है. जो क्षमा देते हैं उसको पार्टनर बोलते हैं. तो उस समय की सोसाइटी में करप्शन इतना था कि क्षमा देने के लिए पैसे की वसूली होती थी, और जो पैसा कलेक्शन करते थे ये पार्टनर लोग, वो पोप के हैंड में जाता था. लेकिन यहाँ पे ठीक है, मेजर पोर्शन, कलेक्शन का मेजर पोर्शन, ये जो पार्टनर लोग कलेक्शन करते थे उसका मेजर पोर्शन वो लोग पोप को दे देते थे, लेकिन अपने भी मार लेता था वो लोग. तो जेफरी चौसर ये बताना चाह रहा है कि पार्टनर भी किस तरह से करप्ट था. ये स्टोरी उसी के बारे में है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है द पार्टनर्स टेल, क्षमा दाता की कहानी. एक नंबर का लोभी था वो. ये पार्टनर ग्रीडी मैन था, और ग्रीड इसके अंदर इतना भरा हुआ था कि वो हर तरफ पैसे की तलाश करता था. लेकिन हर वक्त ये भी बोलता रहता था कि ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स. ये उसका कोटेड लाइन है पार्टनर का. हर समय वो यही बोलता था कि ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स इन सोसाइटी, लेकिन खुद ही ग्रीडी था वो. अब इस कहानी में, इस बुक में कहानी किसकी है? जो पार्टनर कहानी बताता है वो बोल रहा है 3 राइटर्स वर देयर. 3, उसको क्या बोलेंगे आप, बुली एलिमेंट, ड्रंकार्ड, ब्लास्फेमिंग करने वाले, एक नंबर का जुआड़ी, गैम्बलिंग करने वाला. ये 3 दोस्त थे. ये तीनों दोस्त टैवर्न में बैठे हुए थे, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ब्लास्फेमिंग कर रहे हैं, कि उसी समय उसको एक प्रोसेसन, डेड बॉडी का एक प्रोसेसन रोड से जाता हुआ आवाज़ सुनाई पड़ा इन तीनों को. यह आवाज़ किस रूप में? तो वो जो बेल, डेड बॉडी के साथ जो बेल लेकर के जा रहे थे, वो बेल जो बज रहा था उसकी आवाज़ इन लोगों को सुनाई पड़ी. तो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट समवन इज़ डेड एंड हिज procession of dead body is going on. This is an indication when the bell rang. Well, ये तीनों को जब आवाज़ सुनाई पड़ी उसकी, तो ये तीनों बाहर निकले. उन्होंने देखा ये डेड बॉडी किसका है, ये प्रोसेसन. तो पता चला कि उसी चोर के ग्रुप का,
इन तीनों का ही एक साथी और एक चोर था जिसको किसी ने मार दिया था, और उसी का डेड बॉडी का ये प्रोसेसन चल रहा था। तो इन तीनों ने बदला लेने की ठान ली कि जिस किसी ने भी हमारे इस दोस्त को मारा है हम उसको मार देंगे। और ये तीनों दोस्त निकले उसकी तलाश में कि किसने उसके दोस्त को मारा है। तो रास्ते में उसे एक ओल्ड मैन मिला। वो ओल्ड मैन इटर्निटी की तलाश कर रहा था। एक्चुअली डेथ उसके पास आ नहीं रहा था। ही वॉज क्वाइट एन ओल्ड मैन। अब वो ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है यंग में, आइदर वो यंग हो जाए या फिर डेथ उसको ले जाए। तो उनसे इसकी मुलाकात हो गई इन तीनों की। तो ये तीनों उनसे वो ओल्ड मैन जब जाना कि ये तीनों किसी की तलाश कर रहे हैं जिसने इसके दोस्त को मारा है, तो वो बोला मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दोस्त को किसने मारा है। तो इसने पूछा भाई किसने मारा है? बोला वो जो ओक ट्री है उसी के नीचे जो आदमी खड़ा है वो डेथ है, और उसी डेथ ने तेरे दोस्त को मारा है। तो डेथ एक किलर है और वो एक पेड़ के नीचे है, ओक ट्री के नीचे है। इट मीन्स डेथ इज पर्सोनिफाइड हेयर। ये याद रखेंगे आप कि यहाँ पे डेथ पर्सोनिफाइड है। डेथ को आदमी के रूप में दिखाया गया है, दिखाया नहीं गया है, डेथ को आदमी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। हैंस इट इज पर्सोनिफाइड, डेथ इज पर्सोनिफाइड। जब ये तीनों उस ओक ट्री के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा 8 बैग्स फुल ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट्स एंड गोल्ड्स वहाँ पे उस पेड़ के नीचे रखे हुए थे। पूरे बैग फुल थे। चूँकि ये दिन का टाइम था और ये लोग अगर उस बैग को, सोने के बैग को उठा करके ले जाते तो शहर के लोग देख लेंगे और फिर ये प्रॉपर्टी उनकी होगी या नहीं होगी। इसलिए उन लोग को डाउट हुआ। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, नाइट होने दो, हम लोग नाइट को ये प्रॉपर्टी उठा के ले जाएंगे और आपस में बांट लेंगे। ऐसा डिसाइड हुआ। लेकिन तीनों के अंदर कुछ और ही चल रहा था, तीनों के माइंड में। उस तीनों में से जो सबसे छोटा था, 2 बड़ों ने उसको बोला कि यार नाइट तो हो जाएगी, हम लोग खाएंगे क्या, खाना वाना खा लें, तुम जाओ होटल से हम लोगों के लिए खाना ले आओ और दारू की बोतल ले आओ, उसके बाद हम लोग खा पी लेंगे, फिर उसके बाद नाइट में इन सारे गोल्ड को उठाकर हम लोग ले जाएंगे। बोला ठीक है। वो छोटा आदमी चला गया। रास्ते में अब वो सोच रहा है क्यों ना ऐसा करें कि उस वाइन में मैं जहर मिला दूं कि ये दोनों जैसे ही खाएगा, ये दारू पिएगा, वो मर जाएगा और पूरा का पूरा ये गोल्ड मेरा हो जाएगा, हम ले जाएंगे उठा के। उधर वो जो दोस्त बचे हुए थे, अब वो उन दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, जब वो खाना लेकर आएगा तो हम लोग उसको मार देंगे और बाकी का ये जो गोल्ड है वो हम लोग उठाकर ले जाएंगे और आपस में बांट लेंगे। तीनों अपने अपने प्लान पे थे। छोटा ने जो खाना लेकर आया था उसने शराब में जहर मिला दिया था और वो लेकर वहाँ पहुँचा। जैसे ही पहुँचा तो उस दोनों ने इसके ऊपर अटैक किया और इसका मर्डर कर दिया। अब वो दोनों आराम से बैठ के खाना खा करके दारू पीने लगे और दारू पीने के बाद वो दोनों भी ख़त्म हो गए। तो ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स।
ये लालच बुरी बला थी। लालच ही था कि तीनों के तीनों साफ हो गए, तीनों के तीनों ख़त्म हो गए। वो गोल्ड किसी का नहीं हुआ, वो जहाँ का तहाँ रह गया। ये थी कहानी पार्टनर्स टेल की। अब जब ये पार्टनर ने इस कहानी को सबों को सुना दिया, उसके बाद बोला भाई पैसे दो, मैंने तुम लोगों को कहानी सुनाई है। तो पार्टनर वो तो क्षमा दान देने वाला आदमी है, उसको पैसे की ज़रूरत क्या है। और अभी अभी वो बोल भी रहा है कि ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स, फिर वो पैसे मांग रहा है कि लाओ पैसे दे दो। तो इसका मतलब करप्शन सोसाइटी के अंदर पूरी तरह से घुला हुआ था। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी ऑफ द पार्टनर्स टेल, एंड दिस स्टोरी इज स्पेशली टॉट इन द ऑनर्स क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और बुक के साथ। ओके, थैंक्स।